So you'll find that the relationship between your performance and your anxiety is a bell-shaped curve relationship. जैसे कि अगर anxiety बहुत कम होगा तो performance बहुत कम होगा क्योंकि you're not worried about it. और anxiety बहुत ज़्यादा होगा फिर भी performance drop होने लगेगा. So there is something which is a Goldilocks zone or a golden zone where वहाँ पे आपका performance सबसे ज़्यादा होता है. It's like a bell shape. So finding that is also absolutely essential thing. Everyone should know that if a task is there in front of you, are you too much worried about it or not at all caring about it? Some people have aggressive thoughts. जैसे कि एक mother है, उनको ऐसे थॉट आ सकते हैं कि छोटी सी बेबी हुआ है उनको अभी 3 months के. I had a patient, this is a real story. So उनको ऐसा थॉट आता था कि she has to drop the baby down, she has to hurt the baby, she has to kill the baby. But because of those thoughts, she's extremely distressed now because she loves the baby a lot. उनको इतना ज्यादा प्यार है, तभी तो वैसे थॉट्स आते हैं OCD में. OCD is something, that's why OCD is very bad because it actually attacks your most deepest things in your heart. The most important thing to understand in the treatment of OCD is try not to resist your thoughts, but try and resist your reactions to the thoughts. That is compulsions. Try to resist your compulsions. For suppose in your mind there is a doubt, there is an obsession that there is contamination all over your hands, then try not to resist the thought of the contamination. That, okay, my hands are clean, it's okay. Don't do that. Let the thought come into your mind. Let your body feel anxiety and let your body feel distress, but try and resist going to the washroom. Welcome everyone to another episode of our podcast series जिसमें हम डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनसे उनकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट उन डाउट्स को क्लियर करते हैं जो जनरल पब्लिक को होते हैं. बट समहाउ हम या तो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, ऐसे मान लेते कि यार इट्स नॉर्मल, और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी हम उतना डिटेल में नहीं पूछ पाते क्योंकि हम सिर्फ अपना वर्जन जानते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है. बट द थिंग इज़ कि जो डॉक्टर OPD में बैठे हैं, जिनके पास डेली में 100-200 पेशेंट्स आ रहे हैं, ही नोज़ बेटर कि वट एग्जैक्टली हैपनिंग विद पीपल दीज डेज, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आजकल. तो उन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं वो डॉक्टर्स को बेटर पता होते हैं. सो आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमें ओवर थिंकिंग होती है या फिर हमें रात को नींद नहीं आती या इससे भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले हल्की सी डॉक्टर से इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मेड हिम इनटू दिस फील्ड और अभी तक कितने साल की उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, राइट नाउ कहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो डॉक्टर अनिरुद्ध, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में. Hi Chidit, thanks for inviting me for this podcast. Actually really excited to participate in this podcast. I've been thinking about this podcast from last few days. So my interest in psychiatry actually started from very early, way before I knew what psychiatry was. So right from the childhood, I was a very observant kid. I used to be very curious and I used to love observing people. I was always curious why some people behave in certain way when there is stress and some people behave in a different way when there is stress. So I was always into human behavior, into human mind, and later with this backdrop I entered my MBBS. That's when I think I started realizing that I'm a big time overthinker, where I used to worry about every small thing, like how did I look, how did I talk in front of people. So that made me socially anxious. So because of which, because of the fear of judgment, because of fear of being joked about, I just stayed inside most of the time, inside my hostel room most of the time during my MBBS. And second year of MBBS was more tough for me, and that's the time when actually I started having OCD, where I started having different kinds of obsessions, different kinds of thoughts, जैसे कि सोच, which I don't want to think about, but they kept on coming into my mind again and again. For suppose some blasphemous kind of thoughts, sexual kind of thoughts, which made my life very problematic. I think that's when I consulted one of my known psychiatrists.
and I've undergone some amount of treatment, therapy, which actually significantly helped me. Which not only helped me to get rid of my OCD, but also helped me to get rid of my social anxiety, to get rid of my, not get rid of, but to overcome my social anxiety and to overcome a lot of fears that I had in my life. And it actually completely, the treatment of OCD has changed me as a person, as a whole. Uh, so yeah, that's when I started having some amount of interest in psychiatry, and then which got increased till my final year of MBBS. After my MBBS, after completing my MBBS in AIIMS-trained, I've gone forward to do my MD in psychiatry at AIIMS. And after my 3 years of MD training, I've came back to Hyderabad, which is my hometown, where I started doing my senior residency in AIIMS Hyderabad. After working there for a few months, later I joined NIMHANS, that is National Institute of Mental Health and Neurosciences, where I've done my 1 year postdoctoral fellowship on OCD, where I used to see a lot of different types of patients with OCD and other kinds of psychiatric disorders, where I was primarily giving them therapy. My work was primarily clinical. So that was a significantly great experience for me. As we all know, NIMHANS is the best institute for mental health in the entire country. So after my 1 year fellowship in OCD, that is my subspecialization in psychiatry, I returned back to AIIMS Hyderabad, that is my hometown. And currently I'm working at AIIMS Hyderabad. I actually run an OCD clinic at AIIMS Hyderabad, which operates every Wednesday. And apart from that, the other days I also see various different kinds of psychiatric patients, where maybe psychotic disorders or mood disorders, substance abuse, child psychiatry patients, etc. But yeah, my primary interest and my primary focus is in obsessive-compulsive disorder and other related disorders. And I also see other anxiety disorders. So this is about me. Thank you. Yeah, great. So vast experience, like not only one specialization, but I feel is like in psychiatry you have done different angles as well. So that's literally great. And from this, like you have very deep knowledge in OCD. तो एक हल्का सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है कि एक तो है कि एक इंसान में कोई इलनेस है, दूसरा सिनेरियो है कि इलनेस नहीं है, वो प्रॉपर हाई माइंडसेट वाले लोग हैं. अब दोनों में ये वाला जो इशू है ना कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये दोनों में देखने को मिलता है. ये इलनेस है या फिर नॉर्मल है, तो ये है क्या एग्जैक्टली जो हमें ओवर थिंकिंग हो रही है? सो पहली बात तो ये है कि ओवर थिंकिंग सब में होती है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है उसमें. इट डजंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज also does not have any kind of discrimination. It can happen in any kind of person, जैसे कि high functioning people है या और people who are uneducated or who are living in a village. But दोनों का responses अलग होते हैं. Basically, if a high functioning person is having overthinking, he might search it online. He might come to the doctor immediately and quickly. But if a low functioning person is having overthinking, he might not be aware of it, but he is also having a lot of overthinking. Basically, overthinking ऐसा चीज है कि it happens to each and everyone, and it is actually essential for our survival. Like maybe through the discussion, if it comes up, we'll discuss why is it essential for survival. Yeah. आपने बोला कि ओवर थिंकिंग हर इंसान करता है, इसमें कोई ये नहीं है कि कुछ लोग करते हैं कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते. माय मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई डू पीपल ओवर थिंक है? अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई बंदा बिल्कुल ओवर थिंकिंग ना करे. इज इट पॉसिबल? It's not possible, and it's a very, very interesting question, Chandan. So, ऐसा है, I think overthinking dates back to very past, where to the human evolution. जैसे कि
not only humans, even animals do overthink, and they should overthink. If not, there's no survival for them also. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर सपोज हमारा एंसेस्टर कोई, मतलब बहुत साल पहले का जो एंसेस्टर है, जो जंगल में चलते जा रहा है, वो हंट किया, किसी डियर को हंट किया फॉर सपोज, एंड ही इज वॉकिंग थ्रू द जंगल टू हिज कम्युनिटी, एंड जब जाते 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 अचानक से ही सीज अ टाइगर. अभी टाइगर को देख लिया है, तो फर्स्ट थिंग दैट ही विल फील इज फियर, स्ट्रेस. ऐसा एक इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा दिमाग के अंदर, एंड वो आना चाहिए. इफ देयर इज नो स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ही नहीं होता तो वहां से वो भागेगा ही नहीं, वहां से एस्केप करने का कोशिश ही नहीं करेगा, या फर्स्ट सपोज फाइट करने का कोशिश ही नहीं करेगा. सो इफ देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. जैसे कि फाइट करो या वहां से भाग जाओ, वो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो मर जाएगा वहां पे, क्योंकि ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्ट्रेस. तो थोड़ा सा स्ट्रेस आना चाहिए, थोड़ा सा फियर होना चाहिए. जब फियर आएगा, स्ट्रेस आएगा, जैसे कि वो नेचुरल है, ओवर थिंकिंग भी नेचुरल है. जैसे कि फॉर सपोज where there is stress, there will be overthinking. So he has to think all the different possibilities to escape from that tiger or lion, for suppose. जैसे कि मैं भाग जाऊं, या साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर दिख रहा है, उससे 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 मार के फेंकूं, या एक पेड़ है, उसको चढ़ जाऊं, या चिल्लाऊं, या हेल्प के लिए पूछूं किसी को, या तुरंत उसके ऊपर पड़ के उसको मारने लगूं. मतलब ये सारे जो दिमाग में जो थिंक करता है, so that is somehow some amount of overthinking which is actually good for survival. तो वैसे ही सर्वाइव करते आते आते आ रहा है ह्यूमंस, या कोई भी एनिमल अगर सर्वाइव कर रहा है, तो स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. सो एट द सेम, जैसे कि सेम एग्जांपल अगर आज की कंटेक्स्ट में ले, सपोज नाउ वी आर नॉट फाइटिंग विद लायंस और टाइगर्स टू सर्वाइव, बट वी आर गिविंग एग्जाम्स. फॉर सपोज एग्जाम, अगर एग्जाम स्ट्रेस अगर नहीं रहता है, एग्जाम के बारे में ओवरथिंक नहीं करता है, जैसे कि मैं फेल होगा तो क्या होगा, फेल नहीं होगा तो क्या होगा, इतने मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थॉट्स regarding exams go in a person's mind, which is actually sometimes good, because which will make him more afraid of the exam, and he'll start studying. अगर वो डर ही नहीं है एग्जाम के लिए, या ओवरथिंक नहीं कर रहा है एग्जाम के बारे में, वो पढ़ेगा ही नहीं, फिर then there is chance that his performance might go down. So but there is always a caveat to it, where if the person is overthinking too much, for suppose उसी सिचुएशन में, जैसे कि एक टाइगर के सामने खड़ा है कोई इंसान, और बहुत ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है, और इतना हद तक ओवरथिंक कर रहा है कि मैं भागूंगा फिर भी कोई फायदा नहीं है शायद, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा है, कोई रीजन ही नहीं है, मतलब मैं अगर उससे लड़ूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इससे अच्छा मैं, फिर ही ओवरथिंकिंग टू मच, मैं चिल्लाऊंगा तो कोई नहीं आएगा, मैं पेड़ शायद चढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि पेड़ का जो सरफेस है बहुत स्मूथ है, तो मैं ग्रिप नहीं बन पाएगा. तो इतना हद तक ओवरथिंक करेगा टाइगर के सामने खड़ा होके, तो ऑटोमेटिकली इस टाइम में टाइगर आके उसको मार के गिराएगा, क्योंकि ही समटाइम्स ओवरथिंकिंग टू मच कैन पैरालाइज अ पर्सन. So the same thing happens through in exams also, with exams also, if someone is worried too much about the exams, that will paralyze him. Rather than helping the person to read, he'll just feel the exam to be a very big burden, and he'll try to procrastinate, because वो feeling अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना ज्यादा overthink कर रहा है, उसका anxiety इतना ज्यादा हो रहा है, तो he'll not even start studying. So that is also not good. So always एक balance होना चाहिए. Firstly, like your the question you have asked, overthinking is absolutely normal, and it is there in each and every person. MBBS में मुझे लगता था कि लोग इतना confident है और इतना आउटगोइंग है, बट later I realized once I started practicing psychiatry, even a few of my friends contacted me back and said that they were also overthinkers. So जो बाहर जो कॉन्फिडेंट दिखता है, उसका मतलब नहीं है कि वो अंदर ओवर थिंकिंग की बैटल नहीं लड़ रहा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन, आई थिंक आई हैव सीन most senior professors in my field who have given hundreds of lectures, thousands of lectures. उसके बावजूद भी जब वो कुछ लेक्चर देने जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में बोलने जाते हैं, they do have stress, they do have anxiety, they do overthink, but they actually make that overthinking push them. जैसे कि वो हेल्प कर रहा है overthinking वहां पे, और डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है. So
Yeah, that is it. That's why everyone overthinks, because overthinking actually helps you survive, helps you go forward in life. So yeah. सो फॉर दिस पॉडकास्ट मेरे को लगा था कि हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं लोगों को हेल्प करेगा, बट अभी करते करते ये मेरे को खुद को हेल्प कर रहा है कि यार इट्स फाइन यार, इफ़ आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग इट्स फाइन। तो वैसे वाला नहीं है कि मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, नहीं, इट्स फाइन। अब द थिंग इज़ कि ओवर थिंकिंग इज़ नेचुरल, बट उसकी एक लिमिट होगी ना, कि एक पॉइंट पे ओवर थिंकिंग सही है, बट अगर आपने बोला कि ज़्यादा हो जाएगी तो वो पैरालिसिस भी बन सकता है हमारा मेंटल एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ तक अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो इट्स फाइन, इट्स हेल्दी, पर अगर मैं इस लेवल के बाहर चला जाऊँगा तो फिर मेरे लिए सही नहीं है। तो वो एक पॉइंट कैसे हम देख सकते हैं अपने आप? सो इस साइकोलॉजी में भी एक चीज है, समथिंग कॉल्ड एज यॉर्क्स डॉटसन कर्व। जैसे कि अपना परफॉर्मेंस अगर हम लोग ग्राफ करेंगे एक्स एक्सिस में, और सॉरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हम लोग ग्राफ करेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अपना परफॉर्मेंस ग्राफ करेंगे। सो यू विल फाइंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन योर परफॉर्मेंस एंड योर एंग्जाइटी इज अ बेल शेप कर्व रिलेशनशिप। जैसे कि अगर एंग्जाइटी बहुत कम होगा तो परफॉर्मेंस बहुत कम होगा, क्योंकि यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होगा फिर भी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगेगा। सो देयर इज समथिंग विच इज अ गोल्डिलॉक्स जोन और गोल्डन जोन, वेयर वहां पे आपका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होता है। इट्स लाइक अ बेल शेप। सो फाइंडिंग दैट is also absolutely essential thing. Everyone should know that if a task is there in front of you, are you too much worried about it or not at all caring about it? So dono taraf it's not good. So you'll have to try and adjust yourself somewhere in between. So the only single rule is, if your overthinking or your anxiety or your stress is helping you move forward with your task or in your life, or it is helping you to move forward in life, then it is okay. It is normal overthinking. But the moment when your anxiety, when you're overthinking, when your stress actually is causing hindrance, जैसे कि वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, your functioning is getting impaired. In psychiatry we give a lot of importance to functionality. Functionality is a person able to do his work, is a person able to do his work and also feel good about doing his work, or is he able to sleep properly, or is he able to eat properly even with his overthinking and anxiety. अगर ये सब ठीक चल रहा है, आपका काम ठीक चल रहा है, आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में है, और आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं, और खाना पीना टाइम पे खा रहे हैं, और अब नींद में कोई परेशानी नहीं है, then your overthinking is fine. But when all these starts to get affected, your functionality starts getting impaired, आप काम करने जाते हैं पर काम पे भी इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग है कि काम का परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है अभी, एंड यू आर गेटिंग कांस्टेंट स्क्रूटिनी फ्रॉम योर सीनियर्स सेइंग दैट तुम क्या कर रहे हो, योर टीम लीड इज सेइंग दैट तुम पहले अच्छे काम करते थे, अभी अच्छे से नहीं काम कर रहे हो, देन यू रियलाइज दैट ओके आई एम ओवरथिंकिंग, एंड ओवरथिंकिंग इज द रीजन फॉर माय फंक्शनल इम्पेयरमेंट। और कभी कभी ओके, नॉट जस्ट वर्क, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ। इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं कि हम खुल के बात ही नहीं कर पाते जो लाउड वंस होते हैं उनके साथ, देन योर रिलेशनशिप्स आर गेटिंग अफेक्टेड। और समटाइम्स इट्स ऑल्सो वेयर यू ओवरथिंक टू मच and it's difficult for you to sleep also. Your sleep is getting affected now. When all your functions are getting affected, then it is problematic. Then, yeah, and there are also certain illnesses where overthinking out of context हो जाता है. For suppose there's something called as generalized anxiety disorder. अगर overthinking is related, just limited to context. Exam आ रहा है, everyone overthinks कि पास होगा कि नहीं होगा, या अगर फेल हो जाऊंगा तो कैसे रिएक्शंस आएंगे, तो एवरीवन थिंक्स अबाउट इट। बट पीपल हु आर सफरिंग टू जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, दे ओवरथिंक अबाउट एवरी अदर थिंग इन लाइफ। फॉर सपोज सुबह उठने के बाद बाहर जाके मार्केट से सब्जी लेके आना है, तो दे ओवरथिंक अगर कुछ हो जाएगा तो कैसा, वहां पे मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा। सो विच इज अ वेरी माइन्यूट थिंग। अगर कोई और पर्सन होता है उसकी जगह पे, he would not overthink about just going out and getting vegetables. But the same person also, जब GAD नहीं था उसको,
he realizes himself that he was not overthinking at that time in the past, but now he started overthinking. तो जब ऐसा हर एक चीज में, छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि बाहर जाने में, गाड़ी चलाने में, या जो डेली काम पहले आसान थे पर अभी आसान नहीं हो रहे हैं, नहाने में भी कभी कभी कुछ लोग ओवरथिंक कर देते हैं। कुछ हो जाएगा तो कैसा, ठंडा पानी की वजह से मुझे शॉक लग के मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा मेरा। सो व्हेन ओवरथिंकिंग impairs your function and it is out of context sometimes, मतलब जिसमें ओवरथिंकिंग यूजुअली नहीं होना चाहिए उसमें भी ओवरथिंकिंग हो रहा है, then that is also abnormal. So that is unhealthy way of overthinking, and that's when I think you need to seek help. There are a lot of people who can offer you help, so you need to. राइट सो आपने अभी बताते टाइम एक एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम लिया, तो वट आई फील इज़ लाइक कि ओवर थिंकिंग और एंजाइटी सेम है, बट वट आई बिलीव जो आपने एक्सप्लेन करा कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इज़ इट डिफरेंट, और अगर डिफरेंट है तो एग्जैक्टली क्या फ़र्क है इन दोनों में? एग्जैक्टली, आई थिंक ये डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोला, ओवर थिंकिंग का स्पेक्ट्रम हो सकता है। कुछ लोग, आई ऑल्सो टोल्ड दैट एवरीवन ओवरथिंक्स, बट सम पीपल ओवरथिंक a little. For suppose 10% ओवरथिंक करते हैं, 100 में से 10 ओवरथिंक करते हैं, तो दैट इज नॉर्मल, और उस ओवरथिंकिंग उनको हेल्प कर रहा है अपने डे टू डे काम पे। मतलब ओवरथिंकिंग करते हैं इसलिए, फॉर सपोज कोई डिजाइनर है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है चीजों को लेके और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, तो उसको हेल्प कर रहा है अच्छे से डिजाइन बनाने में। फिर आते हैं कुछ लोग 20 to 30% और 40% ओवरथिंक करते हैं, तो उनमें से क्या होगा, उनमें ओवरथिंकिंग कभी कभी डे टू डे एक्टिविटीज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको, क्योंकि ओवरथिंकिंग की वजह से उनका काम स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इसलिए काम नहीं कर पा रहे। तो दैट इज ऑल्सो टू एन एक्सटेंट फाइन, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। फॉर सपोज इफ समवन इज ओवरथिंकिंग more than 50%, for example, 60% or 70%, sometimes 100%, then it can convert into a disorder. For suppose ये सब spectrum है, lower spectrum में normal people है, and higher spectrum where people, high amount of overthinkers are those people where people who are suffering with psychiatric disorders, for suppose generalized anxiety disorders जैसे मैं बोला, वो extreme amount of overthinking है, extreme 100 amount of overthinking, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज के लिए ओवरथिंक करते हैं, बहुत एक्सेसिवली वरी करते हैं, और हर समय एक बैकग्राउंड में एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी जो रहता है वो रहता है, जिसकी वजह से वो काम कर ही नहीं पाते। कभी कभी पहले पूरा अच्छे से काम करने वाले अभी घर से बाहर जा ही नहीं रहे क्योंकि इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। सो इट इज ऑल अ स्पेक्ट्रम। मे बी यू एंड आई विल फॉल समवेयर इन 10 to 30% of the overthinkers, but there are people who are suffering with generalized anxiety disorder who will fall around 80 to 100% of overthinking, which is too extreme for them. That's when they will only function if they take help only. But we can function even without help. But even if our overthinking is crossing the limit, we can still function even without help, but we'll need to have the some amount of knowledge at least to function with at least 40-50% of overthinking. सो बेसिकली जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ अगर, तो आपको भी पता है कि चैट जीपीटी एंड ऑल ये सारा कुछ आजकल बहुत अवेलेबल है, और मैं ना इसको मतलब थोड़ा अब मेरे को बात करते करते लगा कि जैसे आपने बोला अगर एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो हम फिर उसको जो हेल्दी लेवल है उससे ज़्यादा जा रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी टास्क कर रहा हूँ जिसका मेरे को पता है, एंड रिजल्ट पता है कि व्हाट वुड हैपन, बट स्टिल आई टेक एश्योरेंस फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल, लाइक हाँ इज इट ओके, इज इट नॉट। सो आई थिंक नाउ आई एम क्रॉसिंग द लिमिट दैट इज नॉट हेल्दी। I think it's fine still, because आजकल every other person is trying to use AI और online resources इतना ज़्यादा आ गया है कि every other person is trying to use online resources. ठीक है, if you are able to function well by using online resources, it's absolutely okay. जब तक आपका काम ठीक से हो रहा है, you're able to do whatever you're planned to do. For suppose आपका प्लान है, कभी कभी ठीक है, some moment of procrastination होता है, we feel lazy some days, it's absolutely normal. तो आज जो काम करना चाहिए वो कल फिनिश करेंगे, it's absolutely fine. बट काम कर ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, then that is not fine. So आपके लेवल पे I think it's absolutely natural, and because
most of the people are trying to seek reassurance from ChatGPT. ChatGPT से मुझे एक और बात याद आई कि nowadays people are also taking medical advices from ChatGPT, and I am not actually against that. That's absolutely okay, but to a certain extent, जैसे कि मैं बोला हूँ, ओवरथिंकर्स अलग अलग स्पेक्ट्रम के होते हैं. फॉर सपोज इफ हम 50% तक भी है, 10 to 50% के बीच में है ओवरथिंकर्स में, then ChatGPT's advice can actually help you. I'll not say that don't take ChatGPT's advice, but there are a lot of people who might listen to this podcast where whose overthinking is over 50%. तो वैसे लोगों को even after taking reassurance from ChatGPT, they'll still feel not reassured. मतलब फिर भी डाउट होता रहेगा उनको, मैं ठीक से किया कि नहीं, इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं. Then that's the time when I think they'll have to meet a specialist or practitioner to seek help. तो अगर ChatGPT से जो भी reassurance आपको मिल रहा है उससे आप खुश है और उससे आपका काम हो रहा है, then I think there's no need for seeking help. But even after taking ChatGPT's reassurance, most of the time people who are significantly high overthinkers, जिसका generalized anxiety disorder हो गया, वैसे लोगों को तो हेल्प सीख करना ही पड़ता है. विदाउट ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट ऑफ द लूप ऑफ ओवरथिंकिंग. Yeah, right. And one more thing, like कि one of my friend is like I feel like he just do overthinking a lot, और मेरे को लगता है कि उसकी overthinking above 50% है. तो मैंने क्या नोटिस करा है कि वो सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करता, उसके कारण ना वो मेंटली और मे बी फिजिकली भी थोड़ा ना मेरे को डिस्टर्ब्स लगता है. तो is overthinking impacting his physical health as well? Because I think overthinking is mental thing, but is it have any physical impact as well? So yeah, a very interesting question, Chandan. Because to understand this, the physical impacts of stress, overthinking, and anxiety, I think I'll take you back to the same example where you see a tiger. You see a tiger and you are stressed out, you're anxious, you want to run away. तो उस टाइम क्या होगा, बॉडी रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल. जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, इट हेल्प्स आवर हार्ट टू पंप मोर ब्लड टू द मसल्स so as you can fight or run away. Or it also pumps more blood to your brain to think very fastly, to think very rapidly. So it is a good thing, but it is only good in a brief moment. Suppose आप सोचिए कि आप ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे आपने शेयर देख लिया और वो भी हर रोज. Every day you're overthinking and every day your body is releasing so much of cortisol, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, your body is getting tired now. It needs rest. Rest के बिना तो body नहीं चल पाएगी. Always it is in flight or fight mode. There is no rest to it. इतना ज्यादा blood pump हो रहा है आपके body को, और because of which a lot of other things also can develop. अगर cortisol body में बहुत ज्यादा होता है, it is a pro-inflammatory substance. Inflammation बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा body में. Inflammation बढ़ने की वजह से क्या होता है, you'll have all sorts of illnesses like diabetes हो सकता है, जिसकी वजह से stress की वजह से diabetes हो सकता है, stress की वजह से hypertension हो सकता है. There are so much research now on this. So stress की वजह से आपका weight बढ़ सकता है, obesity हो सकता है. So you feel tired all the time because your body is always in active flight or fight mode. और जब तक वो मोड में रहेगा, आपकी sleep भी disturbed रहेगा, आपके appetite भी कम होगा. So all the time you're stressed out. So kabhi you're in a actually stressful situation, cortisol is good. But if the same cortisol is releasing in high amounts on a daily basis, it is absolutely bad for your body. And body will get resistant to a lot of other hormones, like insulin resistance develop हो जाएगा, जिसकी वजह से diabetes होगा, obesity होगा, and it is absolutely bad. But there's also a good part to it, because जैसे कि mental health can affect physical health, in similar way physical health can also affect mental health. For suppose you start taking care of your body now, जैसे कि आप weight बढ़ गए हैं, insulin resistant हो गए हैं, then you start doing some training, जैसे कि resistant training कर लिया, which is now it has the most evidence to be the best form of training, which is going to gym regularly.
और उसके साथ साथ यू ऑल्सो डू सम कार्डियक ट्रेनिंग, जैसे कि रनिंग कर लिया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर इमेंस। जैसे कि आपका कॉर्टिसोल लेवल्स वापस नॉर्मलाइज होंगे, यू स्टॉप ओवर थिंकिंग मच, यू स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली, यू स्टार्ट थिंकिंग बेटर, एंड आपका ओवर थिंकिंग कम होगा, आपका एंग्जाइटी डिक्रीज होगा, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ. सो देयर आर ऑल्सो mental health affecting physical health, and also the same way physical health also affects your mental health. So it's always that balance that you'll have to make between these both, and both are absolutely important. Right. You answered it really well. Like, I can understand now the combination of these two things, and that's the reason, like, मेरे को भी ऐसे फील होता है कि जब मैं अपनी मूवमेंट ज़्यादा करता हूँ तो मेरे को अच्छा क्यों लगता है. सो बेसिकली मेरा कॉर्टिसोल कम हो रहा है, दैट्स वाई मेरे को अच्छा फील हो रहा है. राइट. बट वन मोर थिंग, that is just one of the benefits. Yeah. उसके अलावा भी when you do an exercise, right, there are multiple other hormones, like जैसे कि endorphins release होते हैं. Endorphins are such hormones which give you pleasure. और एक dopamine release होता है. Dopamine is something which releases when you like something, which you're addicted to something. So suppose आपने एक मूवी देख लिया, बहुत अच्छा लगा, एक बहुत pleasant feeling आता है, dopamine. The same thing gets released when you work out. So if you constantly work out regularly आप workout करते रहेंगे, तो then the dopamine gets released on a regular basis, and you start enjoying the process after a point of time. So that is the beauty of it. सो वन मोर थिंग, लाइक स्ट्रेस होता है, हमें ओवर थिंकिंग हम करते हैं, बट आई ऑल्सो ऑब्जर्व लाइक कि नाइट के टाइम ज़्यादा होती है. जब मेरे को सोना है, मेरे को तभी ओवर थिंकिंग की हो रही है. मेरे को सारे दिन में भी तो हो सकती है, बट सारे दिन में ओवर थिंकिंग नहीं है. जब मेरे को सोना है तब मेरे को सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है. वाई दिस हैपन्स बेसिकली? So बहुत common है ये भी. Most of you people might have experienced this thing when you try to sleep, you're unable to sleep and you start overthinking a lot. So this is very logical. जैसे कि आप दिन भर कुछ किसी ना किसी काम से बिजी रहते हैं, you are engaged in some or the other work. थोड़ा सा एक रूटीन है, आपका शेड्यूल है, शाम तक आपका शेड्यूल चलता है. जैसे कि काम पे गया, काम से वापस आया, या कोई कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे तो कोचिंग कर लिया, वापस आ गया, शाम को कोई टीवी वगैरह देख लिया, खाना खा लिया, सो गया. तो योर माइंड इज एंगेज्ड. तो आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, पास्ट के बारे में ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं. तो बट व्हेन यू इन द इवनिंग, व्हेन आफ्टर यू हैव डिनर, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू बेड, suddenly there's nothing, there's no schedule, there's no routine, so everything is blank now. So mind starts overthinking. That's the time when mind starts overthinking. Future के बारे में सारे नेगेटिव ख्याल फिर वापस आएंगे, फिर पास्ट के बारे में आएंगे, यार मुझे ये करना था, वो करना था, अभी ये नहीं कर पाया. तो एक कुछ लोग बहुत ज्यादा फैंटेसी थिंकर्स है, जैसे कि फिर फ्यूचर के बारे में इमेजिन करने लगेंगे, अगर मैं ये बन जाऊंगा तो कैसे होगा, अगर मैं मुझे 5 साल में कहाँ पे रहना है. बिकॉज ऑफ विच sleep is also getting disturbed most of the time. आप सो ही नहीं पा रहे हैं. एक तो एक क्लियर रूटीन नहीं है आपका, और सो ही नहीं पा रहे. So I think this happens because of multiple reasons, and most important reason I feel is, एक तो ठीक है रूटीन नहीं है, but other important reason is we use screens during the bedtime, which is a very very common habit. मैं भी यूज करता हूँ, सब लोग यूज करते हैं. It's like we take mobile phones, we take tablets to our beds. जैसे कि सोने से पहले कुछ रील स्क्रॉल कर लिया, फिर सो गया. तो उसके वजह से क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग. रील्स जब स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम में, दूसरों का लाइफ हम लोग देखते हैं, तो हमें जलन फील होता है, वी फील जेलस, एंड वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट आवर ओन लाइफ. दिस इज वन ऑफ द थिंग. एंड अदर थिंग, देयर आर साइंटिफिक रीजंस वेयर this light, the blue light from the screens actually will affect your sleep, and which will increase your cortisol, thereby increasing your anxiety and overthinking. तो एंड अदर थिंग इज, एक काइंड ऑफ एसोसिएशन बन जाता है. अगर डेली आप बेड को जा रहे हैं, जाने से पहले मोबाइल यूज कर रहे हैं, देन दैट इज एन एसोसिएशन दैट इज देयर इन योर माइंड कि बेड इज फॉर वॉचिंग रील्स एंड ओवर थिंकिंग, एंड इट इज नॉट फॉर स्लीप. तो माइंड में एक एसोसिएशन ऐसा बन जाता है. तो जब भी आप अगर मोबाइल साइड में रख के भी सोने के लिए जाते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप. योर माइंड विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग, बिकॉज वो एसोसिएशन ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि इतने सालों से आप जो हैबिट
बिगड़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन लेके जा रहे हैं और मोबाइल फोन के साथ बेड को एसोसिएट कर लिया अभी आपके दिमाग में, तो टू ब्रेक दिस एसोसिएशन ऑल्सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कीप द मोबाइल phone away and slowly start delinking this thing in your mind. But it can happen. But these are the primary reasons I feel. One thing is using mobile phone in the night. So there are a lot of things which we can do to decrease this overthinking in night. Firstly, मुझे लगता है कि everyone should have a wind down routine. जैसे कि दिन भर आप शेड्यूल बनाते हैं, आप करते हैं, तो नाइट टाइम को भी आपको कोई शेड्यूल होना चाहिए, विच इज कॉल्ड वाइंडिंग डाउन रूटीन. जैसे कि आप खाना इस टाइम पे खाएंगे, पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद खाना खाने के बाद नो मोबाइल फोन्स, नो स्क्रीन्स. जितना भी स्क्रीन का काम होगा उसके पहले ही मैं फिनिश करके सारे स्क्रीन क्लोज कर दूंगा. और खाना खाने के बाद आई हैव अ रूटीन, नॉट डायरेक्टली गोइंग टू बेड. जो रूटीन इसलिए क्योंकि जब भी नींद आता है तभी बेड पे जाना है. इफ नॉट, you just go to your bed, lie down, and you'll start overthinking. You'll not sleep. So the best thing is to have a winding down routine. खाना खाने के बाद स्क्रीन सारे ऑफ करके साइड में रख दो. फिर you take some book, or you do some light walking, or you do some light yoga, light stretching, or also make sure that you eat light meals in the night and don't drink coffee during nights. And you do something in the evening, winding down routine. जैसे कि एक बुक पढ़ लिया जो ज्यादा स्टिमुलेटिंग नहीं है, और तब तक पढ़ते रहो एक जगह पे बैठ के. बेड पे बैठ के मत पढ़ो फिर से. इफ यू सिट ऑन द बेड, अगेन योर माइंड विल एसोसिएट बेड विद रीडिंग. So bed should be only used for two things. One is sleep and other thing is sex. That's it. Only two things. Other than that, आप बुक पढ़िए जब तक नींद नहीं आता है. बुक पढ़ते पढ़ते जब नींद आना शुरू होगा, then you go to bed. तब उसके बाद I think slowly your overthinking habit during night will decrease if you start having a winding down routine. But the thing is कि मेरी ये जो ओवर थिंकिंग की हैबिट है, जो बेसिकली मेरी एक रूटीन बन गई हुई है कि मैं बेड पे स्क्रीन चला रहा हूँ, इसलिए मेरे को नींद भी उस टाइम पे नहीं आ रही. बट ये वाली प्रोसेस को सही होने में भी टाइम लगेगा. और मैंने पर्सनली ट्राई किया है कि अगर मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को 2 बजे तक भी नींद नहीं आ रही, तो मैंने कोशिश करी है कुछ ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन की, मैंने बिल्कुल 1 बजे ही सब कुछ बंद कर दिया और इवन कोई स्क्रीन भी नहीं यूज़ करी. बट स्टिल इट डिडंट वर्क. और फिर अगेन कुछ 10-12 दिन बाद सेम उसी लूप में मैं वापस चला गया. तो कोई ऐसी ट्रिक है कि, क्योंकि रिजल्ट्स तो मिलेंगे 2 महीने बाद अगर हम करते जाएंगे, बट वी आर ह्यूमन, तो हम हफ्ते 1-10 दिन के बाद ना छोड़ देंगे हथियार कि नहीं जी हो ही नहीं रहा तो चलो छोड़ो. कोई ऐसी टेक्निक, कोई मे बी ब्रीदिंग टेक्निक या कुछ ऐसा आप सुजेस्ट कर पाओ कि जिससे रिजल्ट्स थोड़ी जल्दी मिले और बंदा मोटिवेटेड भी रहे कि यार इट्स वर्किंग. Sure. So there are some evidenced relaxation techniques जैसे आपने बोला है. But I would say that okay, उस टेक्निक्स पर मैं बताऊंगा. बट उसके पहले you start doing it very religiously. Initial 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, फिर उसके बाद you'll also start enjoying it. because जब आप ठीक है, अगर आपका रूटीन 1 o'clock को सो के फिर 7 o'clock को उठना है, एंड यू वांट टू शिफ्ट इट टू मे बी 10 बजे सो के फिर 5 बजे या 6 बजे उठना है सुबह, देन इट विल हैपन, बट इट विल हैपन स्लोली लाइक यू सेड. तो आप जल्दी खाना खा के एक वाइंडिंग डाउन रूटीन, प्रॉपर वाइंडिंग डाउन रूटीन, जैसे कि ऐसे नहीं कि यू रीड समथिंग बट इट कैन बी बोरिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग. यू रीड समथिंग, यू डू सम माइल्ड वॉक. और शुरू के दिन में नींद नहीं आएगा. 1 बजे तक शायद जब तक आपका रूटीन टाइम नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगा. बट यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट वेकिंग अप एट 5. अगर 1 बजे सो के भी 5 o'clock को उठना है आपके रूटीन के हिसाब से, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट. तो स्लीप डेट तो होगा, थोड़ा सा स्लीप डेट फील होगा, नेक्स्ट डे थोड़ा टायर्ड लगेगा, बट दिन भर सोना नहीं है. डे टाइम स्लीपिंग इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एसेंशियल एंड नॉट रिकमेंडेड बाय एनी गाइडलाइंस राइट नाउ. सो दिन में नहीं सोना है बिल्कुल भी. थोड़ा सा शुरुआत में जब आप साइकिल को एडजस्ट करते रहेंगे तब थोड़ा सा मुश्किल आपको फील होगा, बट यू कैन एब्सोल्युटली डू इट. सो डे टाइम में आप रेसिस्ट करेंगे स्लीप को, तो ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू डेज योर साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस. देन आपको नींद टाइम पे आने लगेगा, क्योंकि डे टाइम यू आर नॉट स्लीपिंग एंड नाइट टाइम यू आर नॉट स्लीपिंग एडिक्वेटली. तो आपका स्लीप डेट बनते जा रहा है, मतलब स्लीप चाहिए आपका बॉडी को, तो ऑटोमेटिकली 10 बजे नींद आ जाएगा तीसरे दिन चौथे दिन.
So this is one of the technique which is called sleep debt or sleep deficit technique. तो एक और चीज ये है which can help you, like you told, there are certain relaxation exercises. So viewers who are watching this can actually type JPMR in YouTube. JPMR, that is Jacobson Probe Muscle Relaxation Technique. So इसमें क्या है, this is a very evidence-based scientific technique. Not only for sleep, to also decrease your anxiety, to also decrease your overthinking, to also decrease your autonomic hyperactivity. ये बहुत अच्छे से काम करता है. This is around, there are different videos in different languages. You can watch any video, it's absolutely fine. So this will be around 10 to 20 minutes video, जो आपको actually video नहीं देखना है, audio सुनना है primarily. You'll have to plug in your headphones and listen to the audio. So the person who is there in the video will give you certain instructions. जैसे कि आपको you can do it lying down or you can do it while seated in a chair, and it includes certain breathing techniques where you'll have to breathe for some time, hold for some time, and then breathe out for some time. And along with breathing, there is also contraction of your body muscles. एक point आपके टो के टिप से आपके हेड तक सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके फील करके रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी विल गेट रिलैक्स्ड. और रिलैक्स होने की वजह से ओवर थिंकिंग कम होगा. योर माइंड विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एक्सेसिव थॉट्स इन योर माइंड एंड इट विल फोकस ऑन योर ब्रीथिंग नाउ. ब्रीथिंग और बॉडी रिलैक्सेशन पे फोकस करेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट हैविंग स्लीप. सो JPMR इज समथिंग विच कैन हेल्प you. Yeah. So, and one last thing which can also help keeping this routine is, I actually recommend to normal people also. I take it myself. There's something called as melatonin. I think you might have heard. This is supplement. This is a sleep related supplement. 5 mg of melatonin. You can get it anywhere online. Online में आजकल Blinkit में मिल रहा है. You can also get it in Flipkart, Amazon. You can start having melatonin supplements. If you feel that your sleep schedule is too late and you're waking up too late and you want to push it forward, you want to sleep early and wake up early, melatonin is a very good option. Melatonin लेने से तुरंत नींद नहीं आता है, but slowly on taking it regularly, your sleep cycle or sleep timings will fall into place. So these are the 3 things which people can try if they want to improve their sleep routine. One is sleep hygiene, maintaining a winding down routine, and trying sleep debt. And other thing is doing relaxation techniques, and other thing is using melatonin. Yeah. For melatonin, you don't need any prescription. It is a natural supplement. Like you take multivitamin tablet, melatonin is also. Okay, got you. And one more thing, like मेरे को पता है कि मैं overthinking के कारण रात को लेट तक सो नहीं पा रहा. But one another thing is also there, which is a mental condition like insomnia. तो अब मेरे को इंसोमनिया है या फिर मैं ओवर थिंकिंग के कारण मेरे को नींद नहीं आ रही, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है कि यार मेरे को इंसोमनिया हो गया, बट मे बी नहीं हुआ, जस्ट ओवर थिंकिंग इज देयर. तो वो कैसे हम पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली? सो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि इंसोमनिया के भी अलग अलग तरह के इंसोमनिया होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसोमनिया. मोस्ट कॉमन इज स्लीप ऑनसेट डिफिकल्टी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग. ऑनसेट में डिफिकल्टी होता है, लाइक इफ योर स्लीप ऑनसेट इज डिलेड बाय मोर देन 3 hours, then it is called insomnia. For suppose you go to bed at around 7 p.m. and you're not unable to sleep till 10 o'clock also, then it can be called as insomnia. और 10 बजे आप सोने के लिए जा रहे हैं and you're not unable to sleep for till 1 p.m. also, then that can be considered as insomnia, but it should also be chronic. For suppose 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूसली आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेड पे जाते हैं 3 घंटे तक नींद नहीं आता है, और हफ्ते में बहुत ज्यादा बार, हफ्ते में 3 बार से ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्लीप ऑनसेट में डिफिकल्टी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया. एंड शायद आपका प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं है, मे बी यू स्लीप बट यू स्लीप 1 hour late and you're also waking up 1 hour late in the morning, so that is fine. That is just your sleep schedule being little erratic. That is manageable just with techniques which I've told you before. But कभी-कभी insomnia ऐसा problem है, insomnia does not just affect sleep, it also affects your functions. क्योंकि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, सुबह उठना पड़ रहा है, आपको काम को जाना पड़ रहा है, और काम पे आपको अच्छा नहीं फील होता है क्योंकि आपने ठीक से सोया नहीं है. आपको दिन भर थोड़ा सा आपके सिर भारी भारी फील होगा, आपको
रेस्ट अनरेस्ट फील होगा अंदर से, मतलब रेस्ट नहीं लिया ऐसा फील होगा। आप जो भी करते हैं इतना मेंटल शार्पनेस से नहीं कर पाते हैं, यू डोंट रिमेम्बर थिंग्स प्रॉपर्ली, यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली। सो जब आपको डे टाइम साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे, देयर आर आल्सो सम फिजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, लाइक यू हैव चेस्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, आप जो भी खाना खाते हैं ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, आपको फिजिकल वीकनेस फील हो रहा है, so then that can be called as insomnia. Insomnia is a disorder. It's basically a psychiatric disorder. But yeah, every one of you might not be having insomnia. But you see, if this is chronic, persisting, 3 महीने से ज्यादा हो रहा है, 3 घंटे से ज्यादा बेड पे टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, और इंसोम्निया की वजह से डे टाइम इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है, मेंटल चेंजेस हो रहा है, आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, then that can be insomnia, and then you'll have to take help from a psychiatrist. And there are also other 2 different kinds of insomnia, where there is early insomnia, where the person wakes up early in the morning and he's unable to sleep. तो सुबह के 3-2 बजे नींद खुल जाता है, वापस सोने की कोशिश करता है तो फिर नींद नहीं आता है। ऐसा दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन विद डिप्रेशन। So most of the times insomnia, around 40 to 50% of the times, it is coexisting with some kind of psychiatric illness, जैसे कि एंजाइटी हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, उसके साथ वेरी कॉमनली कोएग्जिस्ट करता है। इंसोम्निया एज इट is very rare, but it can happen also. There can be just insomnia without anything also. Or there's one last type of insomnia, which is middle insomnia, where person wakes up in the midnight multiple times, but he goes back to sleep. So three of them are problematic, but I think the most common one is early insomnia, where there is increased sleep latency, जिसकी नींद आने में टाइम लगता है, which is more commonly related to overthinking. Okay, so is there any cure for insomnia or not? Absolutely. Actually, cure एक ऐसा बहुत बड़ा शब्द लगता है मुझे. Most of the psychiatric conditions are treatable. They're absolutely treatable. Completely treatment होता है उसके लिए. But cure बोलने से पहले we'll have to see क्यों आया है वो condition सबसे पहले. If it is because of just day-to-day stress, और अगर वो stress अगर चले जाता है तो completely cure हो जाएगा अपने आप से. और जो कोई नया जगह पे गया है, नया जॉब ले रहा है, लाइफ में कुछ नया चेंज हुआ है, वो चेंज अगर वापस आ जाता है तो देन इट इज क्यूरेबल. बट समटाइम्स क्रॉनिक इंसोम्निया इज रिलेटेड टू क्रॉनिक इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है या ओसीडी हो गया, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइफ लॉन्ग इलनेसेस. तो ऐसे कंडीशंस के साथ अगर कोएग्जिस्टिंग है इंसोम्निया तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल. मतलब ट्रीटमेंट है उसको, बट रूट कॉज से क्योर we cannot say, we cannot tell it, because कभी कभी most of the people tend to have relapses. जैसे कि हम लोग दवाई देते हैं स्लीप के लिए, they improve, they sleep properly, but फ्यूचर में जब दवाई बंद करने के लिए कोशिश करते हैं then again they'll have sleep issues. So it's a chronic issue, but yeah, there is treatment for sure, there is hope for sure. With help it can lead a completely normal life. Yeah, basically वही है कि अगर बंदे को इंसोम्निया है तो उस चीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकता बंदा, चाहे आप ओवर थिंकिंग एंड समथिंग, इन चीज़ों को एक बार के लिए तो बंदा सोच भी सकता है कि इट्स फाइन, हम खुद से कर लेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट इंसोम्निया, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी. Yeah, अगर exactly if especially if there is chronic insomnia, अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई problematically sleep issues चल रहे हैं, please do visit somebody. Yeah, right. And we have discussed about overthinking, we discussed about anxiety, but one more thing that you also told that you have super specialization for that, and that is OCD. So I would just like to know more about it, because we have you with us and we definitely want more details about it, what it is, how it happens, what are the solutions. So we'll discuss more about it. So basically I just want to know what it exactly is. So yeah, OCD is a very close topic to my heart, because personally I've been through OCD, and afterwards also I've seen several number of patients going through OCD, most of which are better, doing well now, and some of them are not doing well also. But I've observed people going through OCD very closely. So one thing I feel is अभी currently society में OCD बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं लोग. पीपल हु गो थ्रू OCD अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इट, बट बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं. अगर कोई बहुत ही परफेक्शनिस्ट है,
कोई बहुत ज्यादा साफ सफाई कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा अरेंज करता रहता है चीजों को, वी कॉल देम ओसीडी। अरे अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ओसीडी है, वी कैजुअली, yeah, so we casually, very very casually use the term OCD uh, without thinking what it actually means. So but the clinical reality of OCD is way more bad. It is a very very distressing, मतलब बहुत ही भयानक कंडीशन है। OCD is like most of my patients come to me and say अगर मुझे कैंसर भी होता फिर भी ठीक है, अगर मुझे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होके मेरे पैर भी चले जाता फिर भी ठीक है, बट OCD is something which is very bad because person who is suffering through OCD also knows that he should not do that, but he continues to do that because their mind starts playing a lot of tricks with them. So I'll just try to simplify what OCD is. So basically OCD is a condition of thought. जैसे कि अपने दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड अ माइंड एज अ थॉट जनरेटिंग मशीन। रैंडम थॉट्स, इधर के थॉट्स उधर के थॉट्स, हजारों नहीं लाखों करोड़ों थॉट्स हर दिन आते रहते हैं, एंड अ नॉर्मल पर्सन टेंड्स टू इग्नोर देम, क्योंकि कैसे भी थॉट आए। फॉर सपोज सम थॉट्स कैन बी इंट्रूसिव ऑल्सो, मतलब आप सोचना नहीं चाहते वो थॉट फिर भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। फॉर सपोज if you locked your door and you go to work, and at workplace suddenly you remember that अगर मैं ठीक से लॉक किया कि नहीं, this is the common doubt people have, common intrusive thought people have. But a normal person, how he reacts to this thought is ठीक है शायद लॉक किया होगा, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा करके चेक तो किया है तो लॉक किया होगा, ऐसा करके फिर वो थॉट को इग्नोर कर देता है। बट अ पर्सन विद OCD ऑन द अदर हैंड, what goes through his mind is he starts overthinking again. यहाँ पे भी overthinking आता है, तो he starts thinking about all different possibilities. For suppose यार मैंने ठीक से लॉक नहीं किया होगा तो क्या होगा, अगर even if there is 1% chance that I've not locked properly, अगर कोई चोरी हो जाएगा तो चोरी होके कुछ मेरे सारे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उसको चोरी करके लेके जाएंगे, तो मेरे घर में जो गोल्ड है उसको चोरी करके लेके जाएंगे, तो या फॉर सपोज देयर इज सम डाउट व्हिच कम्स दैट मैं गैस ठीक से ऑफ किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो फिर गैस लीक हो जाएगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा, फिर सब लोग मर जाएंगे। सो देयर माइंड टेक्स देम इनटू extremes of the thought where they start overthinking significantly. So basically there are a lot of theories. We exactly don't know why this amount of overthinking happens in people with OCD compared to normal people, but there are a lot of theories. Some people say that there is deficiency of serotonin in mind. Some people say that there are circuits in the mind which are more active compared to the normal people. ये सारे hypotheses ही है, but usually through the course what happens is अगर उसको इतना ज्यादा डाउट आ रहा है ऑफिस में बैठ के कि मैं ठीक से ताला लगाया कि नहीं, एंड ही कंटिन्यूस, तो डाउट की वजह से वो काम छोड़ के वापस जाके उसको चेक करना पड़ रहा है कि ताला लगाया कि नहीं, जिसकी वजह से वो उसका काम ठीक से नहीं कर पा रहा है वो। सो दैट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस द पीपल विद OCD हैव. And not only that, this is one type of OCD where you're having doubts about something. There are various different types of OCD. For suppose कुछ लोग जर्म्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, अगर मैं ठीक से हाथ नहीं धोऊंगा तो जर्म्स रह जाएंगे मेरे हाथ में. एवरीवन हैज दैट थॉट, राइट? वंस इन अ वाइल अगर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो वी डू वॉश आवर हैंड्स, एंड अगर थोड़ा सा लगता भी है नेल्स में कुछ है, बट कभी कभी खा लेते हैं, देखा जाएगा ऐसे करके. बट people with OCD, what happens in them is, what if I eat this food? What if germs go inside me? What if I fall sick? मेरे वजह से what if my parents get sick? What if they end up dying because of me not washing hands? So इतना दूर तक लेके जाता है उनका सोच, और वो हाथ धोते हैं, धोने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि और कुछ रह गया है. Then they continue washing their hands multiple times again and again and again and again. So, and this is one type of, and other more distressing and more problematic kind of OCDs are something like where you have all sorts of
blasphemous thoughts, जैसे कि कोई भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे they believe in God so much, and they suddenly start getting thoughts against the God. भगवान के खिलाफ अभी सोच आ रहे हैं जो सोचना नहीं चाहिए उनको. उनके दिल टूट जाएगा अंदर से, एक काइंड ऑफ डर पैदा हो जाएगा. अरे अगर मैं इतना ज्यादा बिलीव करने वाला बंदा हूँ और मुझे क्यों ऐसे सोच आ रहे हैं. So he starts getting panicked, significantly panicked. डिस्ट्रेस आता है. उस सोच से भागने के लिए वो अलग अलग तरीके यूज करता है, भगवान को बार बार प्रे करता रहता है, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है. So there is one other thought where people get sexual thoughts against their own family members. That is also significantly distressing. So these are all different kinds of symptoms which OCD OCD patients can go through. But it is not just perfectionism, or it's not just being specific, particular to one thing, but it is way more difficult to the person who is going through that problem. और क्यों होता है, we are not very sure about it. But basically OCD मतलब जैसे कि नाम ही कहता है, वो मतलब obsession. So there is an obsession. Obsession means a repetitive thought that comes into your mind again and again. बार बार जो भी सोच आपके दिमाग में आता है, रिपीटेडली आता है और इंट्रूसिवली आता है, मतलब आपकी मर्जी के बिना घुस के आ रहा है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रेस हो रहा है. रिपीटेटिव इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग थॉट इज कॉल्ड ऑब्सेशन. और उस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए यू डू समथिंग कॉल्ड एज कंपल्शन. फॉर सपोज जर्म्स है हाथ में, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जर्म्स मेरे अंदर चले जाएंगे, मुझे कुछ बीमारी हो जाएगा, जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रहा है आपको, अभी डर लग रहा है, you're afraid of it. एंड उस डर की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, यू टेंड टू वॉश योर हैंड्स वॉश करने से थोड़ा सा ठीक लगता है, बट थोड़ी देर के बाद लगता है कि अरे और भी कुछ रह गया है, फिर और वॉश करने लगते हैं. सो दिस रिपीटेटिव एक्ट्स दैट यू आर परफॉर्मिंग टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी और in response to your thoughts is called compulsion. So this is how the term is labeled, which is called as obsessive-compulsive disorder. So obsession bhi hai, compulsion bhi hai. Most of the times people who are suffering through blasphemous thoughts, sexual thoughts, they feel that there are no compulsions. But in them also there'll be some kind of compulsions where they're trying to escape their thoughts, trying to pray to God again and again to decrease that anxiety. So that is the kind of compulsion. So this is how OCD is, and in the mind of in the patient's mind also there are a lot of different things that are going on. For suppose people significantly feel guilty. जैसे कि सोच आ गया, मतलब उनको for suppose they get a sexual thought against their own family member, for suppose own mother, that will make them extremely anxious, and they'll feel so bad that as if they have done it in the real life. So एक thought और action fusion हो जाता है उनको. They cannot just leave it like a thought. वो thought को बहुत ज़्यादा value दे देते हैं. They get into thought, they try to fight with the thought, they try to resist the thought, which will make their problem even worse. So वैसे ही. And some people have inflated sense of responsibility. Some people have excessive threat perception. जैसे कि threat है. For suppose अगर तुमने ठीक से हाथ नहीं धोया तो हो सकता है कि you might fall sick. There might be reality to it, but बहुत ही कम chance है that you will fall sick. If you're going on a road, a person might feel that मुझे accident हो जाएगा, तो he stops going out only. But in reality कितना chances है कि अगर आप road पे जाएंगे तो accident होने का शायद 0.1% chances है या 1% chances है. So but in their mind that probability is significantly increased. उनको लगता है कि there is 90% chance that if I go on a road, I might die by accident. So जिसकी वजह से वो जाना ही छोड़ देते हैं. So these are all types of things that run in people's mind. OCD, especially people with OCD. Yeah, okay. So I'm giving you 2-3 scenarios. Like for example, a person is there who just wash hands before any meal. For example, if you are sitting और आप बैठे हो, आपके सामने एक बंदे ने आके चिप्स ऑफर कर दिया आपको, तो आपको अगर वो चिप्स खाना है ना, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि पहले मैं हाथ धो लूँ, ठीक है. इट्स नॉट गेटिंग एक्सटेंडेड कि अगर मैं खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, नथिंग लाइक दैट. बट कुछ भी खाना है तो उससे पहले हाथ धोने ही धोने हैं. सेकेंड सिनेरियो, I'm telling you my own personal experiences because it's getting interesting. So I just want to know if it falls in OCD or not. So another scenario is like needle or blade type things. Like if I go to a barber shop, so
मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में ऐसे रहता है कि यार अगर इसने ब्लेड चेंज कर दिया तो मेरे को इसको सैनिटाइज भी करवाना है, क्योंकि उस पर भी तो हो सकता है ब्लेड चेंज कर दिया बट द ब्लड इज देयर एंड नाउ नया ब्लेड लग गया बट द ब्लड वाज देयर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कुछ हैं, बहुत डीप नहीं जाती, अगर हो गया तो कैसे कैसे, नथिंग लाइक दैट, बट कुछ चेक्स हैं वो मेरे दिमाग में हमेशा ही रहेंगे। अब जैसे मैंने हैंड वॉश का बोला तो उससे मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट, बस मेरे को है कि धोना है, क्योंकि सामने वाले बंदे के हाथ कैसे थे नहीं थे। तो Does it fall in OCD or not? So yeah, मैं जैसे बोला हूँ, ओवरथिंकिंग का भी एक अलग रेंज रहता है। मतलब कुछ लोग 10% ओवरथिंक करते हैं, और जब 50% या 100% तक रीच होने लगता है तब यू विल हैव टू सीक हेल्प। सेम विद OCD ऑल्सो। सो हर एक पर्सन कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ अमाउंट ऑफ ऑब्सेशंस रहते हैं, बट OCD नहीं है, उनको डिसऑर्डर नहीं है, बट दे एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ ऑब्सेशंस। बट आई थिंक आपका जो कंडीशन है, आपका जो एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दैट इज नॉट इवन ऑब्सेशंस, बिकॉज वो एक नॉर्मल लेवल ऑफ क्लीनलीनेस है विच एवरीवन हैज टू फॉलो। जैसे कि अगर कोई इतना भी रिलैक्स होके बोल देता है कि मैं हाथ बिना धो के ही खा लूंगा हर बार, देन ही विल एक्चुअली फॉल सिक, जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स आएंगे। इतना भी नहीं होना चाहिए। बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ वरी प्रॉब्ली यू हैव। कभी कभी जैसे कि बार्बर शॉप जाते हैं तो एवरीवन फील्स दैट ओके, अगर ब्लेड लगाएंगे तो कट जाएगा तो क्या होगा, HIV आ सकता है, विच इज अ सिग्निफिकेंटली डेंजरस इलनेस, और हो सकता है, देयर इज रियलिटी इन इट। बट या व्हेन योर फंक्शनिंग इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस थॉट्स, मतलब अगर आपको इतना ज्यादा जर्म्स के बारे में इतना थॉट्स आ रहे हैं, यू टच एनी सरफेस एंड यू फील दैट इमीडिएटली यू विल हैव टू वॉश हैंड्स। खाना नहीं खाना है, फिर भी आपको वॉश करना ही है, क्योंकि आपको लगता है कि हैंड्स टच किसी सरफेस को टच कर दिया, जर्म्स अभी लग गए हैं, अगर मैं किसी और सरफेस को इसी हाथ से टच करूंगा तो जर्म्स पूरा स्प्रेड होने लगेंगे। मतलब एक मेंटली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनते जाते हैं, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स, जिसकी वजह से आप हाथ धोते ही रहते हैं दिन भर, बिकॉज दिन भर कुछ ना कुछ सरफेस को आप टच करते हैं, फिर दिन भर कोई ना कोई ऑब्सेशन आता है आपके दिमाग में कि जर्म्स है, वो फिर आपके बुक्स पे स्प्रेड हो जाएंगे, आपके पेन पे स्प्रेड हो जाएंगे। तो एवरी टाइम यू कीप वॉशिंग हैंड्स, और समटाइम्स एक बार वॉश करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज मोस्टली नॉर्मल ओनली। बट पीपल विद OCD वॉश हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो मेरा कुछ पेशेंट्स है जो क्लीनलीनेस रिलेटेड OCD के पेशेंट्स है, हु यूज टैंक्स एंड टैंक्स ऑफ वाटर पर डे। जैसे कि उनको नहाने के लिए 5 बार 6 बार जो ओवरहेड टैंक रहता है उसको फिल करना पड़ता है 5-6 बार, विच इज ओवरहेड टैंक इज अराउंड प्रॉब्ली 100 लीटर्स। तो 100 liters into 5 to 6 times, मतलब 600 liters of water per day they are using just to take bath. तो इतना सिवियर होता है कभी कभी, बिकॉज इवन आफ्टर वॉशिंग योर माइंड विल जस्ट गिव यू अ सिग्नल दैट वहां पे ठीक से वॉश नहीं किया आपने, यहाँ पे ठीक से वॉश नहीं किया, यहाँ पे सोप रह गया, यहाँ पे जर्म्स रह गए, यहाँ पे डर्ट रह गया। सो इट इज एन एंडलेस लूप फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली दे आर स्टक इन द लूप, और कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं जिसकी वजह से। सो व्हेन these thoughts and the excessive washing or excessive rituals, any kind of rituals, is impairing in your day-to-day life. मतलब आपकी दिनचर्या में ठीक से आप कर नहीं पा रहे आपके दिनचर्या, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच हो गया है आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया है तब। और एक और चीज ये है कि people with OCD have all sorts of magical thinking. थोड़ा सा मैजिकल थिंकिंग रहता है उनके दिमाग में। उसके हिसाब से उसके मतलब ये नहीं कि दे आर फूलिश और दे आर नॉट हैविंग इंटेलिजेंस। जैसे कि आप बहुत ही लॉजिकली सोच पाते हैं, और आपको ये लगता है कि ठीक है, जहां पे मुझे डर लेना चाहिए वहीं पे डरता हूं मैं, अननेसेसरी चीजों में नहीं डरता हूं। बट OCD के लोग बहुत ही अननेसेसरी चीजों में डरते हैं। फॉर सपोज उनकी दिमाग एक अजीब एसोसिएशंस बनाते हैं। फॉर सपोज उनको रैंडमली नंबर 5 अगर पसंद आता है, इफ इट इज 5 इज देयर लकी नंबर, दे ट्राई टू वॉश देयर हैंड्स 5 टाइम्स, बिकॉज उनको लगता है कि पता नहीं क्या कनेक्शन है, अगर जब तक वो 5 बार हाथ नहीं धोएंगे तब तक साफ नहीं होगा। ऐसे ही रैंडम, मतलब कोई रीजन नहीं है उसका। सो दिस इज कॉल्ड मैजिकल थिंकिंग। तो ऐसा अजीब अजीब एसोसिएशंस बनते रहते हैं OCD के दिमाग में। और कभी कभी 5 अगर छूट जाता है, गलती से काउंट करना भूल जाते हैं, देन दे ट्राई वॉशिंग इन मल्टीपल्स ऑफ 5। फिर नेक्स्ट 10 टाइम्स वॉश करना पड़ेगा मुझे। कभी कभी फिर 10 टाइम्स वॉश करने के बाद भी उनको फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं है 10 बार से, फिर वो 15 हो जाता है, फिर 20 हो जाता है, फिर वो दिन भर वॉश करते ही रहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैजिकल थिंकिंग लाइक दैट। फॉर सपोज
कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि अरेंजिंग ओसीडी रहता है, बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ अरेंज करना है, अगर मैं ठीक से अरेंज नहीं करूंगा कुछ तो बुरा हो जाएगा, समथिंग बैड माइट हैपन। समथिंग बैड क्यों होगा? दे ऑल्सो नो, दे ऑल्सो हैव दैट लॉजिक कि अगर मैं यहाँ पे फोन ठीक से नहीं अरेंज करूंगा तो रियली कुछ बैड नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इतना दूर तक सोच लेते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा फोन को तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। you see the logical gap between that, right? ऐसा नहीं कि उनको लॉजिक नहीं है, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता है दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल बट आई एम अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। एंड अगर इवन 0.0 या 0.01 चांस होता है तो वाई टू टेक रिस्क, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। बट वो करते वो फिर वो कंपल्शंस में ही खो जाता है उनका लाइफ, कभी फिर बाहर नहीं आ पाता है उसकी वजह से। अभी शायद पता चल रहा है आपको, ओसीडी में लॉजिक भी थोड़ा सा मिस हो जाता है, ओसीडी में इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज काम कर नहीं पाते, बट सम अमाउंट ऑफ इट इज एक्सेप्टेबल, जैसे कि आपको और बाकी लोगों को होता है। इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। बेसिकली मेरे को वही है कि मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि इट्स कंप्लीटली नॉर्मल फॉर मी, और मेरे को लिटरली नहीं लगता कि ज्यादा करता हूँ, मेरे को लगता है कि लोग कम करते हैं। बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, यार अभी 2 मिनट पहले तूने कुछ खाया था, अब उसके बाद मैंने हाथ बहुत जगहों पे लगाए हैं, अलग अलग जगह पे, अब मेरे को कुछ खाना तो मेरे को हाथ धोने हैं, बट दे फील लाइक इट्स नॉट फाइन, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड लाइक मे बी आई मे हैव ओसीडी, सो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी दैट इट्स नॉट ओसीडी। बट द थिंग इज दोज पीपल हु हैव ओसीडी, अब वो वर्सन भी तो हो जाती है ना, पहले नॉर्मल था बट धीरे धीरे उन चीज़ों को करा और वो वर्स ही हो गई। तो what are the things that makes OCD worse so that people who are watching can do those remedies so that they can make it at that point or may reduce that instead of worsening that? एक चीज मैं honestly बताऊंगा चंदन, like if someone is having clinical OCD, proper OCD, obsessive-compulsive disorder, sometimes just by watching a online video it's difficult for them to control their OCD, क्योंकि उनका लाइफ कोर्स ऐसा रहता है कि it is usually a waxing and waning course, जैसे कि कभी कभी बढ़ता रहता है, अपने आप से कम हो जाता है, बट कभी जीरो नहीं होता है। जब OCD अगर स्टार्ट होता है it'll never leave you, it'll always be a part of you, and sometimes it can get worsened when you have some stress in your life. For suppose exams आ रहे तो OCD बढ़ गया है, it commonly happens like that. And it continues to happen like that. But yeah, ideally, if you're going to severe OCD, before only I'll give you a disclaimer before starting that you have to seek help, because there are a lot of treatments, especially therapies, that can help you. But yeah, in general, I'll just let you know that OCD के दिमाग में, OCD से जो जा रहा है, उनके दिमाग में कैसे कैसे थॉट प्रोसेसेस चलते हैं जिसकी वजह से the symptoms continue to increase और सिम्टम्स गेट वर्स। एंड फॉर सपोज ऐसे चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वन थिंग इज लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू अ फ्यू थिंग्स, ओसीडी से जो जा रहा है उनके दिमाग में कुछ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कुछ ऐसे कॉग्निटिव चीजें, मतलब सोचने का तरीके में जो अंतर है नॉर्मल पर्सन से और ओसीडी के पर्सन में, वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि ओसीडी पर्सन फील्स दैट अगर इतना बुरा सोच मुझे आ रहा है तो शायद मैं बुरा इंसान हूं, बट दैट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट थिंग they'll have to realize it, your thoughts does not define you as a person. So that is the most common thing that the most of the people with OCD have. अगर मुझे भगवान के खिलाफ थॉट्स आ रहे हैं तो मैं शायद पापी हूं, have done something wrong in my life, but that is not true. These are just your thoughts. So this is your mind. Mind is a thought generating machine. Mind can generate any kind of random thoughts, and there is no need for you to take onus of your thoughts, and there's no need for you to feel bad because of those thoughts, क्योंकि randomly कुछ भी सोच सकते हैं। In reality that is not true. And if some people have aggressive thoughts, जैसे कि एक मदर है, उनको ऐसे थॉट आ सकते हैं कि छोटी सी बेबी हुआ है उनको अभी 3 months के, आई हैड अ पेशेंट, दिस इज अ रियल स्टोरी। सो उनको ऐसा थॉट आता था कि शी हैज टू ड्रॉप द बेबी डाउन, शी हैज टू हर्ट द बेबी, शी हैज टू किल द बेबी, बट बिकॉज ऑफ दोज थॉट्स शी इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड नाउ बिकॉज शी लव्स द बेबी अ लॉट। उनको इतना ज्यादा प्यार है, तभी तो वैसे थॉट्स आते हैं ओसीडी में। ओसीडी इज समथिंग, दैट्स व्हाई ओसीडी इज वेरी बैड,
because it actually attacks your most deepest things in your heart. जो भी आपको बहुत ही valuable है लाइफ में, उसी चीजों को OCD अटैक करती है. So it starts, if you respect God a lot, so it will start attacking God. If you respect your parents a lot, it will start attacking your parents. So वैसे ही है. So she started fearing significantly कि मुझे ऐसे कैसे thoughts आ रहे हैं. I actually don't want to do this, but I'm having such kind of thoughts. So I might be a very bad person. I might be a very bad mother. So with those symptoms, she came to us. So what I have done is I spoke to her and I just told her two things. So अगर आप actually इतना बुरा होते, if you are that bad, would you even feel distress or anxiety because of these thoughts? No, you would actually enjoy these thoughts. अगर आप really psychopath होते, अगर आप really murderer होते, अगर आप really इतना बुरा इंसान होते, तो आप enjoy करते ऐसे thoughts को, है ना? आप enjoy करते और आप implement भी करते, आप actually hurt करते बच्चे को, but you are trying to resist, you're trying to not hurt the kid, and you are coming for the help, you're talking to some other person, and you're actually feeling distressed by those thoughts. आपको बुरा लग रहा है वो सोच से. So that itself indicates that maybe you're not that bad person. That indicates that you're a very good person. आप शायद बहुत अच्छे इंसान हैं, आप शायद बहुत प्यार करते हैं आपके बच्चे को, शायद इसलिए आपको ये सोच बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. तो आई टोल्ड हर फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट योर थॉट्स are different, you are different. You're absolutely a different person, and thoughts are happening because of OCD and not because of you. So this is a very, very clear thing that every OCD, every person who's going through obsessions should understand that you are not your thought. One other thing is people start fighting with their thoughts. अगर ऐसा सोच आ गया तो they start not thinking about it. They try to resist those thoughts. That is also something which is very, 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 very bad. Because ऐसा आप करने लगेंगे तो you think about those thoughts more and more. For suppose मैं आपको एक चीज बोलूंगा. You start thinking about for suppose मैं आपको ठीक है आपको एक 1 minute दूंगा मैं आपको और बोलूंगा कि एक पिंक कलर के एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है आपको बिल्कुल भी. मैं एक 1 minute का टाइम देता हूं आपको. I'll give you 1 minute. Don't think about pink elephant. Please don't think about pink elephant. वो कैसा दिखता है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका टेल कैसा है. प्लीज उसका इमेज तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आपके माइंड में. अगर वो इमेज आ रहा है आपके दिमाग में then that is हराम. उसको नहीं आने देना है आपके दिमाग में. So and I'll give you 1 minute. The reality is क्या हुआ अभी आप कर पाए, आप रेसिस्ट कर पाए पिंक एलिफेंट को? आया तो है, मतलब इतना क्लियर नहीं आया बट आ तो गया है. जस्ट एंड वट एवर थिंग्स यू वर टेलिंग दोज थिंग्स वर कमिंग एट दैट मोमेंट. जब आपने टेल बोली तब ले आई. सो आई थिंक that's how mind works. That means yeah that's how mind works. The things that you don't want to think about, indirectly you're giving more value to those things. जैसे कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा दिमाग में. Because that's not how mind works. So first thing is let any kind of negative thought come into your mind. Thoughts are completely natural. Negative thoughts are completely natural. Everyone has it at certain point of their life. Negative thoughts आना is a completely natural thing. So let those thoughts come. Let those thoughts stay in your mind and let those thoughts go away without doing anything, because thoughts tend to go away. For suppose आप एक रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और trains are thoughts, तो ट्रेन आता है और जाता है. आप एक स्पेक्टेटर बन सकते हैं आपकी सोच का. आप वहां पे बैठ सकते हैं, थॉट को आते हुए देख सकते हैं और थॉट को जाते हुए देख सकते हैं. डोंट गिव वैल्यू टू द थॉट. थॉट का कंटेंट कुछ भी होने दीजिए. थॉट का कंटेंट कुछ भी हो सकता है. पॉजिटिव थॉट हो सकता है, नेगेटिव थॉट हो सकता है. अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव थॉट है, then you have a choice to get into the train and engage with the thought. If not, if it is a negative thought, just stay at the station. Don't try to engage with the thought. Don't try to resist the thought. तो ये करने से भी आपको काफी बेटर फील होगा. पहले तो आपको ये बोलना होगा कि थॉट डजंट डिफाइन माई पर्सनैलिटी, और गिल्टी फील होने का कोई रीजन नहीं है. कैसे भी थॉट आने दीजिए आपके दिमाग में. एंड सेकेंड थिंग, डोंट ट्राई टू एंगेज विद योर थॉट. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज engaging in compulsions and avoidance.
इसके बारे में और बात करेंगे, बट कंपल्शंस आर दोज थिंग्स. अगर थॉट आ गया आपके दिमाग में, फॉर सपोज जर्म्स का थॉट आ गया, जर्म्स है, हाथ में जर्म्स है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है आपको, पर आपको खाना वाना कुछ नहीं खाना है, अगर सच में भी जर्म्स है तब छोड़ दीजिए उसको. यू डोंट गो एंड वॉश करने से आपको थोड़ा सा टेम्पररी एंग्जाइटी मिलेगा, बट दैट विल नॉट मेक यू स्ट्रांग इनफ, दैट विल नॉट मेक यू गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स, दैट विल मेक यू वीकर एंड वीकर. अगर आपके हाथ में डर्ट नहीं भी है, फिर भी आपका दिमाग आपको ट्रिक करके बोलेगा कि डर्ट शायद होगा, क्यों रिस्क लेना है, जाके हाथ धो लो, जिसकी वजह से आपका लाइफ पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा ओसीडी के ऊपर. सो यू शुड कंट्रोल योर, एटलीस्ट यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, बट यू शुड कंट्रोल योर एक्शंस तो आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर इज नो नीड टू गो एंड वॉश योर हैंड्स, देयर इज नो नीड टू गो एंड चेक things again and again. तो ऐसे करते slowly you will feel confident and your OCD will not at least get worse. So this is the most important thing. Unfortunately, most of the psychiatrists outside, they don't spend time to explain these things to the patient. I think these are the most important things that patient needs to know. They just prescribe some medicines and they just send them off. And I think, yeah, things will change in future, hopefully. But actually, these are the things basically which people can do. राइट. एंड आपने जैसे बोला कि जो थॉट्स आ रहे हैं हमें उनके ऑपोजिट नहीं जाना, उनको लेट इट बी करने देना है. बट द थिंग इज, फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को ओसीडी है और उसको एक स्पेसिफिक थॉट आया कि मेरे को ये एक्ट करना है, अब अगर वो अपने दिमाग को थोड़ा सा और मतलब स्ट्रॉन्ग करके वो बोले कि यार आई विल नॉट डू दैट, और he is trying to or he is able to do that, so don't you think कि मतलब is it helping him कि मे बी अगर वो ऐसे करना शुरू कर दे और उसका माइंडसेट ऐसे बन जाए तो मे बी he is reversing his OCD or not? The most important thing to understand in the treatment of OCD is try not to resist your thoughts, but try and resist your reactions to the thoughts. That is compulsions. Try to resist your compulsions. For suppose in your mind there is a doubt, there is an obsession that there is contamination all over your hands, then try not to resist the thought of the contamination, that okay, my hands are clean, it's okay. Don't do that. Let the thought come into your mind, let your body feel anxiety and let your body feel distress, but try and resist going to the washroom and washing your hands. If you do that slowly, day by day, I'm very sure that your obsessions will come down. You'll be more confident. You'll be more daring, actually, because that is the most important thing that is required to try and control your compulsions. It's not an easy thing to do. Maybe I'll continue about the treatment of OCD also here. So the primary treatment for OCD is something called as exposure and response prevention therapy. This is a kind of therapy which actually changed my life, so that's why I continued to pursue it as my career also. So exposure and response prevention therapy is the gold standard treatment for OCD. Apart from there are other treatments like medicines which can also help in treating OCD, like SSRIs, but it is completely logical. पूरा logical ही रहेगा exposure and response therapy. अभी तक जो भी हमने बात किए थे, so we talked about not doing compulsions and not resisting your thoughts. So ERP is something similar to that. So ERP में हम लोग क्या करेंगे, एक artificial situation create करेंगे. For suppose हाथ धोना ही example ले लेते, या doubt for suppose example ले लेते, कि मैंने एक example दिया था, एक IT employee है, IT employee क्या कर रहा है, ताला लगा दिया घर को, ताला लगा के फिर वापस ऑफिस में जाता है. ऑफिस में जाने के बाद उसको डाउट होता है, सो ही स्टार्ट्स हैविंग डाउट दैट वेदर ही हैज लॉक्ड द डोर प्रॉपर्ली और नॉट. फिर वो क्या करता है, इतना ज्यादा डाउट बढ़ जाता है कि वो ऑफिस छोड़ के फिर वापस घर आता है, फिर लॉक चेक करता है, फिर सेटिस्फाइड फील होता है, फिर वापस ऑफिस जाता है, शायद फिर उसको लगता है कि मैं शायद खींच के नहीं चेक किया इस बार, तो वो वापस जाता है, वापस खींच के चेक करता है. 3-4 बार ऐसे चेक करने के बाद उसको शायद थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले, बट उसका टाइम वेस्ट होता है. हर दिन उसको बॉस से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऑफिस में टाइम पे नहीं आते हो, लेट आते हो, ये सारी चीजें. तो बिकॉज ऑफ विच ही इज हैविंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस. सो दिस इज ओसीडी ऑफ हैविंग पैथोलॉजिकल डाउट्स. सो अभी इसको ईआरपी के थ्रू हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं. सो मे बी वी क्रिएट सर्टन सिचुएशंस फॉर हिम
where we'll tell him to lock the door and go to his office and never come back. जो भी हो जाए, अगर आप लॉक ठीक से नहीं भी किए, फिर भी डोंट गो बैक एंड चेक. Then what happens slowly, उसके दिमाग में डाउट तो आता रहेगा कि ठीक से नहीं लगाया होगा लॉक, ठीक से नहीं लगाया होगा लॉक, या गैस ठीक से बंद नहीं किया होगा, कोई चोरी कर देंगे घर में, या गैस सिलेंडर फट जाएगा, पूरा सारी चीजें डैमेज हो जाएंगे. सो ऐसे थॉट्स आते रहेंगे उसके दिमाग में. बट ही लेट्स द थॉट्स कम, लेट द थॉट कम इनटू हिज माइंड. थॉट्स को आने देता है, वो एंजाइटी आएगा. फिर थॉट्स आएंगे तो एंजाइटी आएगा, क्योंकि दीज आर नॉट प्लेजेंट थॉट्स, दीज आर डिस्ट्रेसिंग थॉट्स. सो वो डिस्ट्रेस होगा, उसको एंजाइटी होगा, उसको अच्छा नहीं फील होगा. बट स्लोली क्या होगा, बॉडी को वो एंजाइटी का आदत पड़ जाएगा. सो ही गेट यूज्ड टू दैट एंजाइटी. एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, at the end of the day, when he comes back and again opens his door, he will be confident, happy that he has locked the door properly. फिर ऐसा करते करते रेगुलरली क्या होगा, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद he'll start realizing that यार मैं एक बार भी आके नहीं चेक किया, 1 हफ्ते में 1 बार लॉक लगा देता हूँ और चले जाता हूँ, 1 बार भी आके मैंने चेक नहीं किया. उसके मतलब ये है कि मेरा चेक करना जरूरी नहीं है. चेक ना करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है. सो ही लर्न समथिंग न्यू, दैट देयर इज नो नीड टू चेक. चेक करने के अलावा भी, चेक करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है. द सेम थिंग अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ OCD. फॉर सपोज ही इज वॉशिंग एक्सेसिवली, इफ ही इज नॉट वॉशिंग नाउ एंड इफ ही कंटिन्यूज टू ईट विदाउट वॉशिंग हैंड्स, देन ही विल स्लोली स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट फॉलिंग सिक. हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे शुरुआत में ही कि तुम बीमार नहीं होंगे, बट हम लोग ऐसे बताएंगे कि देयर इज चांस दैट यू माइट फॉल सिक, बट यू विल हैव टू टॉलरेट दैट एंजाइटी, यू विल हैव टू लिव विद दैट अनसर्टेनिटी. जो भी अनसर्टेनिटी है उसके साथ तुम्हें जीना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन लिव्स विद अनसर्टेनिटी. सो यू विल हैव टू लिव विद योर अनसर्टेनिटी. धीरे धीरे से वो उसको अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने का क्षमता बढ़ेगा. ही विल बिकम अ मोर डेयरिंग पर्सन, मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन धीरे धीरे से. So this is how ERP works. ERP is exposure and response prevention. Exposure ये है कि थॉट्स को आने देना. कोई कभी कभी ट्रिगर, हम लोग वॉलंटरीली ट्रिगर करते हैं उस चीज को, वॉलंटरीली कुछ गंदा चीज अप्लाई करते हैं हाथ को और बोलते हैं कि अभी तुम्हें धोना नहीं है हाथ और अभी उसी हाथ से तुम्हें खाना खाना है. सो दिस इज एक्सपोजर. एंड प्रिवेंशन क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स को प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग. रेस्पॉन्स क्या है, तुरंत जाके हाथ धोना, वो हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस, बाई डूइंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, and doing it in a graded way, slowly, step by step करते you can actually significantly help person with OCD. So, and overall the more interesting thing is, he'll not just become better in the sense of OCD, but he'll also get better in his other aspects of life. जैसे कि वो लाइफ में ज्यादा रिस्क लेने लगेगा अभी, क्योंकि उसको एंजाइटी टॉलरेट करना आ गया है अभी लाइफ में. ही नॉट शाई अवे फ्रॉम गोइंग ऑन टू अ स्टेज एंड गिविंग अ परफॉर्मेंस. तो ERP is something which is life changing, is what I would say. If it is done properly, it is life changing. Right. So basically he knows now. So it is just logical. Treatment भी logical. Yeah. Right. कि उसे पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं भी किया तो भी कुछ नहीं हो रहा, और उसके पास एक्चुअल रिजल्ट्स हैं सामने कि हाँ, पहले तो उसे लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, बट 10 बार करने के बाद उसको लग गया पता कि यार होता तो कुछ है नहीं, तो मैं बेवजह कर रहा हूँ. सो देयर इज अ प्रूफ along with the results and all. Absolutely. So yeah, right, that absolutely feels like one of the best treatment, although if it's at the higher end, so basically the medicines are required. But yes, I also feel like that's the only thing one person can do in that scenario. So you just explained interesting it. Thing, yeah, please. One more interesting thing, because ERP is something. Yeah, ERP is something which is considered to be gold standard. क्योंकि there is a lot of evidence now saying that ERP से जो improvement आता है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है. It remains for long period of time compared to improvement which comes with only medicine. So I think everyone should know this, that because so that's why many people are now considering ERP to be superior. ERP कुछ नहीं है. It is just a therapy. It is just talk therapy, or sometimes doctor will give you a task to get rid of your fears. So that now day by day ERP is becoming more famous, more prevalent among
the community, and people are coming to know about it. I think everyone should be aware of ERP. And even if you're not having OCD, if your lifestyle is something similar to ERP, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो और रिस्क और डर के साथ जीना सीखते हो, then obviously it will also help you to progress in your life also. Right. Yeah. So basically, you confirmed like it's not OCD what I feel, but still I felt like I'll just try to do this ERP with me as well. Like जो थोड़ा बहुत मेरे को अपने आप में फील हो रहा है, that should also not be there. So that's actually working well. So that is complete about OCD, its symptoms, its prevention. But if I tell you that one gold standard advice for those people, one is ERP. Other than that, any other thing that people should know about to be more vigilant about it, or to reverse this or get less impacted by it? Any other more suitable method? One is ERP. Any other method? So ERP के साथ साथ usually what we do is we do something called as cognitive restructuring. Okay. See, all these things can be done by self also. There is lot of evidence now कि ऐसे कुछ resources है जो आप खुद भी कर सकते हैं. बहुत सारे online resources है. Maybe after the podcast I'll let you know. You can put some links of it in the comment section so that people can get benefit out of it. Right. So कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ERP के साथ साथ मोस्ट कॉमनली वी डू इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है, जैसे मैंने कुछ चीजें बोला हूँ आपको, जैसे कि इनकी सोच में ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और या इंक्रीज्ड थ्रेट परसेप्शन रहता है. जैसे कि किसी चीज़ का होने का संभावना 1% है, तो इनके दिमाग में ऐसा लगता है कि 50% चांसेस है. सपोज मैं हाथ धो के नहीं, बिना हाथ धोए खाना खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा. उसका अगर रियलिटी में जस्ट 1% चांस है, तो उनको लगेगा कि 50% चांस है. तो 50% chance अगर है, then we try to talk to the patient and to talk some sense into the patient. For suppose कुछ logic लाने की कोशिश करते हैं उसमें, जैसे कि we talk about probabilities now. We talk to the patient about अगर 50% chance है, तो अभी तक तो तुम्हें बीमार पड़ जाना चाहिए, क्योंकि OCD तो बीच में आया. OCD से पहले तो तुम बचपन में बिना हाथ धो के कितने बार खाना खाया, तो अभी तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए अगर इतना ज़्यादा परसेंटेज है. तो then they'll start thinking about it. Maybe शायद 50% नहीं है, then they'll come to 20%. They'll try come to bargain कि शायद इतना रिस्क नहीं है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्क एस्टिमेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. एंड ये जो एस्टिमेशन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ERP ऑल्सो डिक्रीजेस. ERP करते करते उनको खुद के जो प्रूफ सामने रहेगा, तो ये रिस्क एस्टिमेशन कम हो जाता है. तो वी कैन डू इट 2 ways. ERP करने से पहले हम लोग उनसे बात करके ये जो रिस्क एस्टिमेशन कम कर सकते हैं, फिर ERP कर सकते हैं, या ERP करते करते अपने आप से वो सोच बदलता रहता है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो, व्हिच वी यूजुअली डू अलोंग विद द ERP. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग ये भी करते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन. जैसे मैं बोला, अगर दिमाग में ऐसे सोच आया कि आई हैव हिट समवन in front of me. I usually give this example. मेरे दिमाग में ऐसे सोच आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगा, और मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं शायद ऑलरेडी कुछ गलत कर दिया होगा मेरे बच्चे के साथ, मुझे मेरे खुद के बॉडी पे विश्वास नहीं है, मेरे खुद के आंखों पे विश्वास नहीं है. I might have hit someone, I might have scolded someone. I get this violent images that I am hurting someone, I am killing someone. So I tell them, see, now you voluntarily imagine. अभी आप इमेजिन करिए आपके दिमाग में कि आप मुझे मार रहे हैं. You are hitting your therapist. You are trying to hurt your therapist. You are trying to kill your therapist. Then initially वो लोग resist करते हैं, but I insist them to think in a violent way that you are hurting me, you are killing me, you are trying to harm me. Then they do think. फिर मैं पूछूंगा, आपने तो सोच लिया है, but मुझे तो दर्द क्यों नहीं हुआ है? Why didn't I feel the pain? फिर वो बोलेंगे कि फिर they start realizing, तब लॉजिक बाहर आएगा. शायद ये जस्ट मेरा सोच है, रियलिटी में तो कुछ नहीं है. Then I'll again reinforce that, saying that, see, it is just your thought. सोच is not equal to reality. Thought is not equal to reality. Just by thinking that you're harming someone, it's not in reality you're not doing it.
and you will not do it also because Right. you are not enjoying these thoughts. You're distressed by these thoughts. So these are the techniques. These are the various different techniques which we can use. अलग-अलग OCD में every patient is different, every person is different, and every kind of OCD is different. So basically cognitive restriction एक चीज़ है और ERP एक चीज़ है, और अलग-अलग चीज़ें भी आते हैं which I personally don't recommend. There are several different things also. There's something called as mindfulness. Mindfulness helps if you have so many different thoughts and if you're not able to do ERP. Mindfulness as a last resort can help. Mindfulness एक broad term है. Okay. बहुत बार सुने होंगे आप भी. Mindfulness बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को mindfully करना है आपको, मतलब you have to be in the present moment. You'll have to be in the moment and you'll have to do it mindfully. Right. You'll have to have gratitude. You'll have to be grateful for the things you have. And along with some relaxation techniques, ये सारी चीज़ें mindfulness में सिखाते हैं. तो OCD के context में mindfulness ये है कि they say that you just be an external observer of your thoughts. You try to observe your thoughts. You're sitting on a river bank and your thoughts are like a flowing water in a river. Yeah. You're just observing the water flow. बस इतना ही. So this is mindfulness. So mindfulness can also help, but the primary gold standard is ERP. And there are various different other therapies like ACT, which is also nowadays getting famous. But all these other therapies, in ACT, we generally tell the patient to say that you accept that you have OCD. You accept that you're having these thoughts, but parallelly you focus on living your life fully. Right. For suppose you try to work fully, you try to engage in your work fully, you try to study fully. You don't, because of these thoughts, you don't stop living your life. Even if it is partial, you try to do it. अगर thoughts की वजह से एटलीस्ट 100 में से 10% आप कर पा रहे हैं, करिए, बस काम मत रोकिए. बस काम रोकने से और बिगड़ता है आपका कंडीशन. It will not get better. Right. So that is ACT. So there's ACT, there's DIRT, there's mindfulness, there is cognitive restructuring, but the best evidence is the gold standard is ERP. क्योंकि ERP में क्या है, आप जैसे बोले, there's a live evidence in front of him. Right. कि कुछ हो नहीं रहा है करने के बावजूद भी. So that is the best evidence always. Instead of 10 लोग भी बोलेंगे फिर भी satisfaction नहीं मिलेगा, but आप खुद की आंखों से, खुद की बॉडी से फील कर पाएंगे, then that is the best evidence that a person can get. Yeah, basically. So these are all other things that are available. Yeah, right. So basically वही है कि हमारी प्रॉब्लम माइंड में है, उसका सोल्यूशन अगर हम माइंड में ही कर रहे हैं, so that's syncing with each other, so it's automatically getting reduced. So that's why I also feel like ERP is best option. So what I felt like the whole discussion, although it took more than 1.5 hours, but it's literally, while doing the podcast, it's feeling like so much helpful for me now. I can't imagine like how much helpful it would be a person who would be watching the video as well. So guys, आप इस वीडियो को इस सिनेरियो से ना देखना कि इट्स जस्ट अनदर पॉडकास्ट, और बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे. दैट्स नॉट लाइक दैट. आप इस पॉडकास्ट को उस सिनेरियो से देखो कि अगर आप एम्स जा रहे हो डॉक्टर से एक कंसल्टेशन के लिए ना, तो सुबह आप 4 बजे उठ के जाओगे, पहले लाइन में खड़े होगे, और क्योंकि डॉक्टर के माइंड में भी है कि पीछे 200 पेशेंट्स हैं, इतना टाइम कोई डॉक्टर नहीं दे पाएंगे. हाँ, वो आपको एक बेस्ट मेथड बता देंगे जो आपके लिए सूटेबल है, बट दिस मच लॉन्ग डिस्कशन can never be done. You also know this much long discussion is not even possible in private consultation. So अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसे लगता है कि यार OCD हो सकता है, मेरे को लग रहा था कि मेरे को OCD है बट मेरे को OCD नहीं है, आई गॉट टू नो विद दिस पॉडकास्ट. अब इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरे को बेनिफिट मिला है, आप देखोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, बट द ओनली थिंग कि आपको इसको कंप्लीट देखना पड़ेगा. अगर आप एक पॉइंट पे देखोगे फिर छोड़ दोगे, दैट्स नॉट हाउ इट वुड वर्क, बिकॉज इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें हमने पहले डिस्कस करा व्हाट इट इज. नाउ after that we discussed its symptoms and then we discussed its treatment and everything, and believe me, it took so much of time for the doctor itself, and I'll just not include my time here because I just felt helpful with that, because if I would have to get the solution for my thoughts and all, I'll have to pay consultation, I'll have to spend so much of time in the lines and all. So मेरा तो benefit हो गया है इसमें. मैंने
डायरेक्ट बेनिफिट ले लिया है। आपको चाहिए वीडियो को अच्छे से देखो और अपने आप में चेंजेस लेकर आओ। अगर आपको OCD नहीं है बट इश्यूज हैं, अगर OCD है तो आपके पास जो बेस्ट आपको साइकाइट्रिस्ट मिलता है उसके पास जाकर प्रॉपर कंसल्टेशन लो और अपने आप को बेटर बनाओ। सो डॉक्टर आपको बहुत बहुत थैंकफुल। क्योंकि इट्स लिटरली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे लगा नहीं था कि इतनी डीप कॉन्वर्सेशन होगी और मैं खुद इतना एंगेज कर पाऊंगा बीइंग फ्रॉम नॉट अ मेडिकल बैकग्राउंड, बट स्टिल आई वाज जस्ट लाइक एंगेज्ड just like you. So that's literally helpful. Thanks a lot for your time. Thank you so much. And then I'll just, before concluding, I just wanted to tell one last line. जो भी ये podcast सुन रहे हैं, एक चीज आप अगर इस podcast से लेके जाना चाहते हैं, that is बहुत ही चीजें लग सकता है आपको, but this is actually true. डर के सामने जीत है. So the basic funda behind ERP is डर के सामने जीत है. You actually try to experience fear, don't shy off from grabbing opportunities in life. अगर आपको OCD है, then it becomes even more important for you to actually face your distress, face your fears, and then move forward. Yeah, and that's it. I'll also tell Chandan to give some resources which I feel which are very helpful to people who are suffering through OCD, or at least people who are suffering to some other mental health issues. It will be very helpful. I think that's it. And thank you so much for inviting me to the podcast. Yeah. Thanks a lot, doctor.